Well, the centre has announced that 25th June will be marked as Samvidhan Hatya Divas against the emergency that was imposed by then Prime Minister Indira Gandhi. Soon after that, a war of words began between the BJP and Congress. Prime Minister Narendra Modi called this day as a reminder to all the sufferings that people went through during the emergency. Home Minister Amit Shah referred to PM Indira Gandhi as a dictator who strangled the soul of Indian democracy. Meanwhile, Congress President Mallikarjun Kharge has slammed the BJP and said that NDA government has been celebrating Constitution Murder Day every day for the last 10 years. Let's in fact listen into some political reactions coming in. सरकार जो और प्रश्न है देश में उसके ऊपर से ध्यान हटाना चाहती है। आपातकाल को हो गया 50 साल, एक जनरेशन खत्म हो गई। और यही लोग हैं, ये लोगों ने हमेशा इस देश में संविधान को माना ही नहीं। ये लोगों का देश के स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान नहीं, और ये लोग संविधान की हत्या, संविधान वगैरह 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 बोल रहे हैं। इमरजेंसी हमने देखी है, हम उस वक्त कॉलेज में थे। जिस तरह से इस देश में कुछ नेता अराजकता फैलाना चाहते थे, वो बहुत गंभीर बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था। रामलीला मैदान से खुलेआम बड़े बड़े नेता ये आह्वान कर रहे थे आर्मी को कि प्रधानमंत्री या सरकार का आदेश का पालन मत करिए। ऐसा कभी होता है क्या? सरकार को, आर्मी को आप भड़का रहे हो कि आदेश का पालन मत करो। The emergency, several kind of harassment to the common man, it took place. On that basis, present government in Delhi, they decided, entire cabinet decided, not only this is the decision of not an individual. How, when Indira ji running the government at that time, what all happened? On that basis only, harassment, several illegal activities, on that context, present government decided in the cabinet to bring that Kalacharan Din as emergency, what they declared at that time, Samvidhan Hatya Divas. That day, present cabinet decided to bring the Kala Din, some Hindi words actually what you are doing, Samvidhan Hatya Din. That is actually yesterday they decided. देखिए 25 जून 1975 को जब इस देश में इमरजेंसी लगी और एक तरह से हम कह सकते हैं कि संविधान की हत्या की गई, एक साथ विदाउट ट्रायल लाखों लोगों को जेलों में डाल दिया गया, प्रेस पे सेंसरशिप लगा दी गई, संविधान में बदलाव करके संविधान की आत्मा को ही खत्म कर दिया गया था। तो ऐसे दिवस को जब हम 50वें वर्ष में प्रवेश कर गए, इमरजेंसी के कालखंड को देखते हैं 75 से, तो भावी पीढ़ी को ध्यान रहे कि ऐसा भी एक कालखंड आया था जब कांग्रेस ने और कांग्रेस की नेता श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इस देश की संविधान की आत्मा को भी मार दिया था, संविधान को भी खत्म कर दिया था। इसलिए संविधान की हत्या की, इसलिए 25 जून को प्रत्येक वर्ष संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें गलत क्या है? संविधान हमारे देश के लिए एक बहुत पवित्र ग्रंथ है, जिसमें सबको एक नियम कानून के तहत रहने, व्यवहार करने और समाज, मनुष्य, जीव जंतु सबसे जुड़ा हुआ अनुच्छेद है, धाराएं हैं, और उसी के अनुसार हमारा देश चलता है। तो मैं मानता हूं कि उस संविधान को 25 जून 1975 को कांग्रेस के शासन में
उस संविधान को दरकिनार कर दिया गया, आपातकाल घोषित कर दिया गया। और आपातकाल घोषित करने का मतलब था कि संविधान की सारी धाराएं समाप्त, संविधान में जो आपको अधिकार प्राप्त है समाप्त, संविधान में जो आपको मौलिक अधिकार प्राप्त है समाप्त हो गया, जो आपको देश के संबंधित कोई विषय रखने की आजादी हो समाप्त। और जो ऐसा बोलता था उसको जेल के अंदर बंद कर दिया गया। ये 25 जून 1975 को हुआ, तब कांग्रेस का देश में शासन था। After emergency, the Congress party has ruled this country with Indira Gandhi, Rajiv Gandhi, Manmohan Singh and Narasimha Rao. They should know about it. The people of this country has restored confidence on the Congress party. We all know that the BJP is rattled and they are unable to face the constitution story. We all know that when we named India Alliance as India, they try to bring Bharat into it. Now when Jai Samvidhan is an issue, they wanted to divert it from this kind of things. It's a diversionary tactics. The RSS has trained BJP friends for it. And we all know that the real issues, they want to divert the people of India from the real issues of NEET, the examination leaks, the Agniveer's failure, and the price rise. This is a diversionary tactics. People won't accept this kind of politics. People will reject this kind of diversionary tactics. देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग लोकसभा चुनाव के परिणाम से बहुत ही परेशान हो गए हैं। अब उनको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कौन सा रास्ता अख्तियार करें, कौन सा हथियार इस्तेमाल करें जिससे इंडिया गठबंधन की चीज़ों को रोक सकते हैं। तो वो अब इमरजेंसी की बात कर रहे हैं बार बार। अभी इन्होंने तमाम कार्यक्रम भी उस पर किए, पर कोई कार्यक्रम सक्सेस नहीं हुआ। कारण ये है कि जो आज सबसे ख़राब स्थिति में देश खड़ा है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार। कल एक वीडियो मैंने देखा गुजरात का, जिस गुजरात के मॉडल पे इन्होंने पूरे देश के अंदर कहा कि भाई गुजरात मॉडल है हमारा सबसे अच्छा है, पूरे हम देश को गुजरात मॉडल में बना देंगे। वो गुजरात मॉडल भरूच में एक छोटे से होटल में इंटरव्यू, सैकड़ों हजारों बच्चे उस पर गिर रहे हैं। ये स्थिति सामने दिख रही है। इससे कितनी बार हो चुका, मतलब एक वीडियो आ गया आज, पर कितनी चीज़ें ऐसी हो चुकी होंगी। तो इनको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे करेंगे। तो ये घबराहट में आज इन्होंने, मैं समझता हूँ कि आज 12 तारीख है, 12 जुलाई को ये 25 जून का नोटिफिकेशन जारी कर रहे हैं। My colleague Mohammed Afsar with us on the broadcast to give us more on this. Mohammed, of course, a lot of political reactions coming in at this point of time as far as the Samvidhan Hatya Divas is concerned. What are the statements and what exactly is the opposition saying? What are they saying? बिल्कुल, अपोजिशन बहुत ज़्यादा अटैकिंग मोड में कल से ही दिख रहा है। कल शाम से ही कांग्रेस के रिएक्शन, समाजवादी पार्टी के रिएक्शंस, आरजेडी के रिएक्शंस लगातार आ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो इतना तक कह दिया कि 30 जनवरी को हम गांधी हत्या दिवस अनाउंस कर दें, तो क्या यह ठीक है? कांग्रेस ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पेशली कहा, मैं लाइंस बताता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब मध्य प्रदेश में भाजपा नेता आदिवासियों पर पेशाब करते हैं तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? जब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग होता है तो क्या ये संविधान की हत्या नहीं है? और पिछले 10 साल से लगातार एक अघोषित इमरजेंसी चल रही है, वो संविधान की हत्या नहीं है। मतलब कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, पूरा अपोजिशन अटैकिंग मोड में है। पूरा अपोजिशन लगातार यही कह रहा है कि बीजेपी सरकार में रहने का दुरुपयोग कर रही है और ये सिर्फ लोगों को असली मुद्दों से भटकाने का तरीका है। और ये संविधान हत्या दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है क्योंकि अगर 25 जून के बाद आज 12 जुलाई को अगर आप ये जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.